Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agarwal Todi, and today we have brought you Corb's Learning Style. This is a video for NET and GRS students. Before we start, don't forget to share a Dive to Learn, and the Dive to Learn now is available in Play Store, so you can download it from there. Okay, so let us start it. Kolb's learning style are one of the best known and widely used learning style theories. Psychologist David Kolb first outlined his theory of learning style in 1984. So this learning style was developed by David Kolb in 1984, okay? And it is also known as one of the best learning style theories around the world. He believed that our individual learning styles emerge due to our genetics, life experiences, and the demands of our current environment. In addition to describing four different learning styles, Klob also developed a theory of experiential learning and a learning style inventory. So, before we talk about Klob's learning theory, first we have to understand what is his theory. इनका theory के अंदर क्या चीज़ ऐसा है जो इसे इतना डिफरेंट बनाता है. ओके, तो उनके लर्निंग स्टाइल में हमें वो क्या बताते हैं कि एक इंडिविजुअल का ज्ञान प्राप्त करने का लर्निंग स्टाइल में उसका जेनेटिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है. फिर उसका लाइफ एक्सपीरियंस, उसके लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो भी उसके लर्निंग स्टाइल को बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है. एंड द डिमांड ऑफ आवर करंट एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में हमारी सोसाइटी में हमको क्या चाहिए, क्या चीज़ लर्न करना है, और हमारा क्या नेसेसिटी है टुडेज वर्ल्ड के लिए. तो वो भी बहुत ज़्यादा नज़र में रखना पड़ता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दोज थिंग्स इनटू अकाउंट व्हाइल यू आर लर्निंग. In addition to describing four different learning styles, Kolb also developed a theory of experiential learning and learning style inventory. So different learning styles तो उन्होंने describe किया ही किया है. उन्होंने develop किया है experiential learning and learning style inventory. ठीक है, ये भी उनका उन्हीं के नाम पे दर्ज है ये inventions भी. Now, what are the learning styles of Kolb? We will understand that. Okay, learning styles. Kolb expressed this cycle of learning as four stage cycle of learning. तो जो ये learning का cycle है, Kolb ने उसे four stage cycle of learning में इसको बताया है. ठीक है, in which immediate concrete experiences provide a base for observation and reflection. इसमें जो इमीडिएट हमारा एक्सपीरियंसेस है, जो हमारे कंक्रीट एक्सपीरियंसेस है, वो हमारे को क्या बोलते हैं, वो दैट प्रोवाइड्स अ बेस, वो हमारा फाउंडेशन होता है अपने लर्निंग को देखने के लिए. एंड ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शंस, सो दीज आर द main base for learning. Cobbs explained that different people naturally prefer a certain single different learning style. ठीक है, एक इंसान में नेचुरली होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल होता है उसका. ठीक है, वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स प्रिफर्ड स्टाइल्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल सोशल एनवायरनमेंट, एजुकेशनल एक्सपीरियंस और द बेसिक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल. तो जैसे मैंने बोला ना कि एक इंसान को सीखने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है. And then comes the observation and reflection part, are assimilated and distilled into abstract concepts, producing new implications for action which can be actively tested in turn, creating a new experience. तो ये observation and reflection क्या होता है? Observation and reflection means आप जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, जब आप कुछ चीज सीख रहे हैं, देख के सीख रहे हैं, उसी को फिर जो भी आपने देखा है, जो भी आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर बाद में आपने जो कुछ भी सीखा है उसको देख कर उसी चीज को आप जब रिफ्लेक्ट करते हैं, जब आप खुद करते हैं, तब क्या होता है, आपका लर्निंग पूरा होता है. ओके, are assimilated and distilled in abstract concepts. Abstract concept का मतलब आ गया यहाँ पे जो आपका cognitive है, learning theories, cognitive part of learning is called as abstract learning. Okay,
प्रोड्यूसिंग न्यू implications for actions which can be actively tested in turn creating new experiences. तो अपने आपने जो ऑब्जर्व करके सीखा है, जो अपने काम में निकालते हैं, जो अपने काम में वो सब जो सीखा उसको डालते हैं, तब एक न्यू एक्सपीरियंस, एक न्यू चीज, न्यू वर्क उभर के आता है. दैट इज द part when we say that learning is done. Okay, now here Kolb's model therefore works on what is that point, 4 points क्या है जिसके ऊपर इनका मॉडल वर्क करता है. इनका मॉडल वर्क करता है, one is the concrete experience which is called as CE, then comes reflective observation, abstract conceptualization and active experimentation, that is AE, and a 4 type definition of learning styles. Okay, each representing the combination of the 2 preferred styles like, see there, concrete experience, that is having or doing an experience जो हमारे पास ऑलरेडी है, और एक्सपीरियंस, और वी आर अंडर सम एक्सपीरियंस जो हमारा वी आर वेरी गुड एट दैट इज कॉल्ड द concrete experience. Okay, then comes the reflective observation. Reflective observation means reviewing and reflecting on the experiences. हम अपने experience जो भी हमारे पास है उस experience को हम review करते हैं, जो हम देख रहे हैं, observe कर रहे हैं, उसको फिर reflect करते हैं अपने experience. मेरे पास ये experience, अच्छा मैं अगर अपने experience में इस चीज को जो मैं देख रहा हूँ उसको भी add कर देता हूँ तो मेरा कुछ नया ही चीज बन के आएगा, कुछ अच्छा बेहतरीन experience होगा, एक बेहतरीन work होगा. तो ये चीज जब हम लोग observe करते हैं और reflect करते हैं उसी चीज को अपने काम के, अपने एक्सपीरियंस में, दैट इज कॉल्ड reflective observation. Then comes active experimentation, that is planning and trying out what you have learned. तो अभी तक तो आपने कुछ किया नहीं है, बस देखा है और सीखा है और ये सोचा है कि हाँ मुझे अपने जो एक्सपीरियंस मुझे पहले से, जो ज्ञान मुझे पहले से, उसमें मैं अगर ये जो सीख रहा हूँ, जो देख कर सीख रहा हूँ, उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो जाएगा. ये हमारा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन था. अब एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, जो भी आपने ये अभी ऑब्जर्व करके देख के सीखा है और आपका रियल एक्सपीरियंस है, अब उसको प्लान आउट करना है, उसको ट्राई करना है और उसको रियल में करके दिखाना है. दैट इज एक्टिव एक्सपेरिमेंट. ओके, एंड देन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, दैट इज कंक्लूडिंग लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस. फिर आप जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो या जो भी आप अपना वर्क पेश करते हैं तो उसका कंक्लूजन क्या होता है, ईदर इट इज मास्टरपीस, आप बहुत बढ़िया करते हो, या आपको वहां पे कुछ जगह ऐसे गलतियां करते हो जहां पे आपको सुधार की जरूरत होती है. तो दिस वे द लर्निंग इज डन. That is called the Kolb's learning style. Okay, diverging now, feeling and watching, that is between CE and RO. First of all, before I teach this, एक यहाँ पे एक ये है, देखिए diagram. Diverging, that is feel and watch. It is between concrete experience and reflective observation. That is CE and RO. ठीक है, दैट इज डाइवर्जिंग एक्सपीरियंस विच वी कॉल एज फील एंड वॉच. किसी चीज को हम देख के फील करके वॉच कर रहे हैं. ओके, देन कम असिमुलेटिंग, दैट इज थिंक एंड वॉच. ठीक है, तो असिमुलेटिंग मीन्स थिंक एंड वॉच. दिस कम्स बिटवीन रिफ्लेक्टिंग, वॉचिंग एंड थिंकिंग के बीच में जो टाइम लगता है वो हम असिमुलेटिंग कर रहे हैं. दैट इज वी आर थिंकिंग अबाउट दैट मैटर व्हाट वी आर लर्निंग एंड व्हाट वी आर अबाउट टू डू, और what we are हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं वो देख रहे हैं, देख कर सीख रहे हैं. ठीक है, फिर आता है कन्वर्जिंग, दैट इज जो भी देखा है हमने, जो भी सोचा है हमने, जो भी सीखा है देख के, उसको अब अपने दिमाग में से निकाल के उसको रियलिटी में करने का टाइम आ गया. तो हम ये लर्न करते, ग्रास्प कर लेते हैं जो भी सीख रहे हैं, एंड देन नाउ हम उसको ट्रांसफर करने के इस मोड में कि हाँ अब मुझे सब कुछ आता है, अब मैं इसको अपने आप ही कर सकता हूँ. एंड देन कम्स accommodation, that is feel and do. This comes between active experimentation and again concrete experience, because when you are doing something between this active experiment, जो आपने कुछ सीखा है उसको करते हैं, and then what happens, you are experienced on that part. आपने सीखा है, आपने लर्न किया, अब आप एक्सपीरियंस हो गया उस पार्ट के लिए, एंड देन अगेन व्हाट कम, दैट इज अ कंक्रीट एक्सपीरियंस. इस काम के लिए आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है. नाउ टू ऐड ऑन दिस एक्सपीरियंस अगेन आप फिर कुछ चीज ऑब्जर्व करते हैं, अपने एक्सपीरियंस में ऐड करते हैं, एंड देन इट गोज ऑन इन दिस साइकिल, इन दिस लर्निंग मैटर. ओके,
सो प्रीवियसली मैंने ये बोला था है ना. नाउ डाइवर्जिंग मतलब फील एंड वॉच, दैट इज बिटवीन सीई एंड आरओ. एबल टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख सकते हो. मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, अगर मैं और किसी और को वही काम किसी और तरीके से करते हुए देखती हूँ तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस में ऐड ऑन करने की जगह मिलती है. अच्छा, मेरे यहाँ थोड़े थोड़े लूप होल्स है, मैं यहाँ पे करेक्शन कर सकती हूँ. सो दैट इज वे आई लुक, I learn, I feel, and I watch. Okay, I feel my mistakes, I watch, and I try to learn. Assimilating similarly is watching and thinking. जो आप देख रहे हो किसी और का काम, किसी मॉडल का काम देख रहे हो, उस काम को देख के थिंक करते हो, and that comes between AC and RO. Assimilating means learning preference is for a concise logic approach, more interested in ideas and abstract concepts. So इसमें क्या है, आप देख रहे हो, आपके एक्सपीरियंस में आप ऐड ऑन कर रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये तरीके से अपने कवर को फर्दर करना है. वो उस पार्ट ऑफ द टाइम को क्या क्या कहा जाता है, असिमिलेटिंग. आप असिमिलेट कर रहे हो, आप उसको सारे जितने भी ज्ञान है उसको आप अपने अंदर ऑब्जर्व करा रहे हो. ठीक है. देन कम्स कन्वर्जिंग, दैट इज डूइंग एंड थिंकिंग, विच कम्स बिटवीन एसी एंड एई. सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड विल यूज देयर लर्निंग टू फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रैक्टिकल इश्यूज. तो यहाँ पे हमने देखा, सीखा, अब अपने प्रॉब्लम्स में या वो सिमिलर प्रॉब्लम्स में हम उसी चीज को अपना एक्सपीरियंस के, जो भी एक्सपीरियंस हमने किया है, गेन किया है, उसके बतौर हम वहां पे काम करेंगे. ठीक है. accommodating, doing and feeling, that is we are now, we have felt what we learned. okay, now अब हमें ये इतना ज्ञान हो चुका है कि हम ये जानते हैं क्या करना है हमें, and now we are doing it. हम इसे प्रैक्टिकल में ला रहे हैं. दैट इज बिटवीन सीई एंड एई. यूज अदर पीपल्स एनालिसिस एंड प्रीफर टू टेक अ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. कोई आपको कुछ बोल रहा है, उस चीज को आप प्रैक्टिकली करके, आप जो भी सीखा है आपने देख के, ऑब्जर्व करके, सोच के, वो अब प्रैक्टिकली आप ला रहे हैं. अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ इसको इम्प्लाई कर सकते हैं. एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, laboratory group work, individual problem solving, examination, multiple choice, deductive reasoning, etc. तो ये टाइप का हमारा जो लर्निंग है, ये हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंटेशन, दैट इज व्हेन वी आर डूइंग एक्टिवली किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे, तब. रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, दैट इज व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग समवन एल्स इज डूइंग द एक्सपेरिमेंट, हम ऑब्जर्व करके उसका रिफ्लेक्टिव मतलब शायद वो सामने वाला भी कुछ गलत कर रहा, उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं, इसको ऐसा नहीं, सही तरीके से ये होता है, मुझे तो आता है बोल के जो हम लोग रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्व करते हैं, वहां पे ये लर्निंग हो रहा है. लेबोरेटरी में जब ग्रुप वर्क करते हैं तब ये काम आता है. एंड इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब हम अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तब भी ये काम आता है. एंड एग्जामिनेशन में हम ये कब यूज कर सकते हैं, इन योर मल्टीपल चॉइस और डिडक्टिव रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, so this much for today. Don't forget to like Type to Learn. Type to Learn app is now available in Play Store, so please download it from there. Thank you.